Atma Namaste. Okay, good afternoon, everyone. Thank you for joining. Am I audible, visible to all of you? Atma Namaste. Yes, Samji. Yes, sir, pure physical. Atma Namaste. So, how are you all? Sab ठीक ठाक? Good, sir. Okay, so let's start for today's topic. Let's start with a short prayer. Please put your hands on heart. Slowly inhale and exhale. You can mentally repeat with me. To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, to all the great ones, to all the holy gurus, saints, archangels, holy angels, special mention to our spiritual teacher, and all the great ones, we thank you for your blessings, guidance, help, and protection during the session and throughout our life. Thank you in full faith. Okay, so today we are going to talk about the virtue number 2, generosity and non-stealing. ठीक है, सो जनरोसिटी एंड नॉन स्टीलिंग पे जाने से पहले लेट अस अगेन रिकैप थोड़ा सा कि हमने क्या स्टडी किया था. लाइक वी आर द सोल हैज़ गॉट थ्री क्वालिटीज विच इज़ द सेम क्वालिटी ऑफ गॉड, that is love, light, and power. Divine love, divine light, and divine power. सो इन हिंदुइज्म हम इसी तीन क्वालिटी ऑफ गॉड को तीन डेटी के हिसाब में वर्शिप करते हैं. लव को हम विष्णु के हिसाब से वर्शिप करते हैं, लाइट को हम ब्रह्मा के हिसाब से वर्शिप करते हैं, और पावर को हम शिवा के रूप में वर्शिप करते हैं. और यही लाइट, लव एंड पावर मैनिफेस्ट इन अस अकॉर्डिंग टू द 5 वर्च्यूज, जो 5 वर्च्यू के हिसाब से हमारे थ्रू सोल अपने लाइफ में इसको मैनिफेस्ट करता है. ओके, डिवाइन लव मैनिफेस्ट होता है 2 वर्च्यू के थ्रू. एक है लविंग काइंडनेस एंड नॉन इंजुरी, जिसके बारे में हमने लास्ट वीक बात किया. और डिवाइन लव मैनिफेस्ट होता है जनरोसिटी एंड नॉन स्टीलिंग के थ्रू ही. इसको भी थोड़ा सा समझते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड हाउ इट हैपेंस. Like in Hinduism, the god of love is Vishnu. Okay, and Vishnu or the love, that is a nurturing, वही हमको सस्टेन कराता है, वही हमको जिंदा रखता है. तो इसलिए स्थिति संभालने का काम विष्णु का होता है, नर्चरिंग का काम विष्णु का होता है. Okay, the wife of Vishnu is Lakshmi. That means it says that although this Lakshmi and Vishnu, this is symbolic. Literally husband wife by ऐसा कोई थे, I don't know, that is again a debatable topic. But ये इसका एक symbolic meaning ये है कि although Vishnu or the love and the prosperity or the wealth has direct कुछ connection नहीं है, स्पेशली जहाँ प्यार है वहाँ पैसे की क्या ज़रूरत है, ऐसा लोग बोलते भी हैं. ओके, बट whenever a person loves someone or whenever there is love, there is a tendency to give and share. Okay, wherever there is love, there is a tendency to give and share. और जहाँ गिविंग एंड शेयरिंग होता है वहाँ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कर्म उसके पास और ज़्यादा आता है. The person whoever gives, he receives, he becomes entitled to receive more. So love activates generosity within us. Generosity brings more of the wealth or whatever you share to you. That is law of karma. So let us understand again what is law of karma. Law of karma कहता है जो हम देते हैं वही हमको मिलता है. अगर आपके लाइफ में कुछ चीज़ें आपको मिली हैं, फ्यू थिंग्स यू हैव गॉट बाय बर्थ, बाय डिफॉल्ट. ओके, मे बी यू आर बॉर्न इनटू अ सर्टेन फैमिली, or you have inherited certain fortune, that is because of the good karma that you have done in your past life. And इस लाइफ में आप जो गुड कर्मा जनरेट करेंगे अकॉर्डिंगली योर नेक्स्ट लाइफ विल ऑल्सो बी prosperous or not.
So if we are going to talk about prosperity, so prosperity doesn't mean always money. Prosperity में और भी कई सारी चीज़ें आती है, that will also cover up in short. ठीक है. सो एक तो होता है हमको बिना कुछ दिए लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें मिल जाती है, डजंट मीन दैट वी रिसीव विदाउट गिविंग. गिविंग हमेशा पहले आता है, रिसीविंग बाद में आता है. अब अपने लाइफ में भी देखिए, इफ़ यू आर डूइंग अ बिजनेस, फर्स्ट यू हैव टू डू इन्वेस्टमेंट, देन यू गेट अ प्रॉफिट. अगर आप खेती भी करते हैं, पहले आपको बीज प्लांट करना पड़ेगा, उसके बाद फसल आएगा. So in every case, if you are a student, if you are studying, then study comes first. First, that is an investment that you do. Then you later on you get a job or you work somewhere and you start earning money. That is return. So first, always it is giving comes first, then receiving. If we take about breathing also, जब हम सांस एक सांस छोड़ते हैं तभी हम दूसरा सांस ले पाते हैं. So life is a series of giving and receiving, inhalation and exhalation. ये एक लाइफ का प्रोसेस है. लाइक हम लोगों ने जैसे सोल बुक स्टडी किया है, वी हैव रेड समवेयर दैट ये हमारा लाइफ भी गॉड का एक ब्रीदिंग है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. Okay, this is on a higher perspective. But this is how the life is. Everywhere it is giving, then we receive. और आज हमको कुछ मिला है, एक चीज़ आप लॉ ऑफ कर्म में समझ जाइए. If we have received something today, it is because we have given somewhere. Okay, so लॉ ऑफ कर्म में 3 सब लॉ, छोटे लॉज हैं. लॉ ऑफ कर्म इज अ मोटा लॉ. जैसे 3 की यहाँ पे भी 3 का ही कॉन्सेप्ट है, जैसे लाइट, लव एंड पावर 3 है सोल में, उसी तरह लॉ ऑफ कर्म के भी 3 छोटे पार्ट्स हैं. ओके, I'll tell you that also. फर्स्ट इज कॉल्ड लॉ ऑफ हार्वेस्टिंग. लॉ ऑफ हार्वेस्टिंग का मतलब हो गया, जो बीज हम बोएंगे उसी का फसल हम काटेंगे. एप्पल प्लांट करेंगे, एप्पल का सीड प्लांट करेंगे तो एप्पल ही मिलेगा. मैंगो का प्लांट करेंगे तो मैंगो ही मिलेगा. सुबह आलू की सब्जी बनाएंगे तो दोपहर को आलू की सब्जी ही खाएंगे, समथिंग लाइक दैट. एंड लॉ ऑफ हार्वेस्टिंग. दूसरा है लॉ ऑफ मल्टीप्लायर इफेक्ट. मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई होता है. जैसे गुड कर्मा भी आप करेंगे तो रिटर्न में बहुत ज़्यादा आएगा, बैड कर्म भी करेंगे तो रिटर्न में बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होके आएगा. दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट. एक बीज बोते हैं तो कई सारे फसल मिलते हैं. सो दैट्स हाउ द कर्मा गेट्स मल्टीप्लाइड. कई बार होता है कि हमने छोटा सा एक किसी के बारे में किसी को गाली भी दिया या किसी को चाटा भी मारा, तो उसका रिटर्न में हो सकता है आपको बहुत बड़ा एक धक्का लगा, समथिंग तो इट ऑलवेज कम्स इन, जब वो रिटर्न आता है तो मल्टीप्लाई होके आता है. इवन द बूमेरंग आपने देखा होगा, दे थ्रो इट एंड व्हेन इट कम्स बैक इन अ वेरी हाई स्ट्रेंथ. ओके, सो दैट इज मल्टीप्लायर इफेक्ट. मल्टीप्लाई होता है इफेक्ट. द थर्ड सब लॉ ऑफ कर्मा इज प्रिंसिपल ऑफ लैग टाइम. प्रिंसिपल ऑफ लैग टाइम का मतलब होता है कि जिस तरह हर बीज को वो अंकुरित होके फसल निकलने में एक टाइम होता है, एक हार्वेस्टिंग पीरियड होता है, उसी तरह हर कर्मा का भी एक पीरियड होता है, हर एक्शन का भी एक पीरियड. कर्मा मीन्स एक्शन. सो एक्शन कैन बी एट फिजिकल लेवल, वर्बल लेवल और मेंटल लेवल, तीनों लेवल पे. दैट वी डिस्कस्ड इन लास्ट सेशन ऑल्सो. सो व्हेन वी सो, जो रिटर्न आने में कई बार टाइम लग सकता है अकॉर्डिंग टू द लैग टाइम कितना है उसका. सो सम, जैसे कि कुछ चीज़ों का लैग टाइम, जैसे राइस हैज़ अ लैग टाइम ऑफ 3-4 months. There are some other plants which has a lag time of like 5 years also. So depending upon the कौन सा प्लांट आपने शो किया है, कौन सा बीज बोया है, उसके हिसाब से लैग टाइम लगेगा. So these 3 sub laws, if we remember in law of karma, we'll understand how generosity brings fortune to us. Okay, so when a person is in love, basically when there is love in the heart or the compassion in the heart chakra is big. So जो लोग हम डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं, जो लोग बहुत डोनेशन करते हैं, दूसरे को हेल्प करते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं, उनको हम बोलते हैं द पर्सन हैज़ अ बिग हार्ट. उसका दिल बहुत
बड़ा है. So we talk about basically the heart chakra that is bigger. When the heart chakra is bigger, naturally उस इंसान में टेंडेंसी होता है दूसरों को हेल्प करना, दूसरों को देना, दूसरों को मदद करना. So वहाँ से generosity का concept आता है. That is why it is a manifestation of love. Generosity is a manifestation of love. So generosity means sharing or giving. Physical level में कोई पैसा देना या कोई चीज़ देना, that is generosity. Sharing or giving things or money wisely. The key to prosperity is in giving. If you have financial problem, the way to become prosperous is by using law of karma and practice of generosity and non-stealing. So अगर आपको financial problem है, this is a virtue you can practice. You can start being generous. ओके अगर आपको पैसे चाहिए, सिंपल चीज़ यहाँ पे मास्टर बोलते हैं, लॉ एकदम क्लियर है. आप सोच लीजिए अभी इस वक्त, थिंक इन योर माइंड, व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट इज दैट यू नीड. ओके, जस्ट थिंक फॉर अ फ्यू मोमेंट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, एंड इन जनरल व्हाट एवर यू वांट, दैट इज व्हाट यू गिव. आपको अगर पैसे चाहिए तो आपको पैसे देना पड़ेगा. तो मेनी टाइम दिस क्वेश्चन कम्स टू मी ऑल्सो. जब हम ये सजेस्ट करते हैं तो बोलते हैं पैसे नहीं है तो कहाँ से दें. पैसे का प्रॉब्लम है, दैट मीन्स पैसे नहीं है. अगर पैसे नहीं है तो हम कैसे दें. दैट क्वेश्चन कम्स टू मेनी पीपल्स माइंड. बेसिकली कहने का मतलब ये है, हो सकता है आपको लाख की ज़रूरत हो, बट देयर आर पीपल, आपके पास 1000 हो, बट देयर आर पीपल हु नीड 100 ऑल्सो. They are in a dire need of that money. से लॉ बिल्कुल सिंपल है. लॉ ऑफ कर्म वही बोलता है जो आप देंगे वही आपको मिलेगा. तो इसको अगर हम उल्टा सोचें तो जो हमको चाहिए वो आप दीजिए. तो जेनरोसिटी में, जेनरोसिटी ब्रिंग्स फॉर्चून और गुड लक. इफ यू शेयर थिंग्स और मनी टू पीपल, यू जनरेट गुड कर्मा, यू बिकम एंटाइटल्ड टू रिसीव. दिस इज द लॉ. सो मनी के केस में आप देख सकते हैं, यू कैन फाइंड आउट पीपल हु नीड मनी. यू कैन टेक आउट 10%. मास्टर यहाँ पे सजेस्ट करते हैं आपको अपने इनकम का 10%, जिसको टाइदिंग बोला जाता है. सो इफ़ यू वांट टू बी रिच, इफ़ यू वांट टू क्रिएट प्रॉस्पेरिटी, you have to follow tithing. This is what is the recommendation of the teacher. After you have given tax and tithing, save 20 to 30% what you earn. उसके पहले टाइदिंग के बारे में हम बात करें. टाइदिंग का मतलब होता है 10%, जितना आपको आपका इनकम है. इफ़ यू आर अ सैलरीड पर्सन, आफ्टर टैक्स जो आपके पास पैसा आता है, दैट इज योर इनकम. नाउ उसका 10% दैट इज टाइदिंग. And if you are a businessman, after expenses of the business and tax, जो आपका पैसा बचता है, your profit, उसका 10%, that is tithing. So in Christianity it is called tithing. In Hinduism it is called dasamansh. Dasamansh means also 10%, and in Islam I think it is called zakat. So exactly कितना percent है that I don't know, but there is something called zakat in Islam also. So this concept were given in all the religions because people knew this law. इनको ये लॉ, ये नियम पता था कि जो हम देते हैं वही हमको मिलेगा, और 10% हमारी कमाई पे 10% शेयर गॉड का है. एंड इफ वी डू नॉट गिव दैट मनी हैप्पीली, समवेयर और अदर दैट मनी विल गो. कहीं ना कहीं से आपसे वो पैसा चला जाएगा. कोई कहीं से स्टीलिंग होगी, कहीं से लॉस होगा, कहीं से कोई बीमार पड़ जाएगा, कहीं ना कहीं से दैट मनी यू विल नॉट बी एबल टू सेव दैट मनी, एनी वे इट विल गो. सो इट इज बेटर दैट यू गिव हैप्पीली एंड यू जनरेट गुड कर्मा. दिस इज व्हाट इज and out after that 10% tithing, 20 to 30% of your income you can invest, save and invest. अगर आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो बहुत ही रिच हुए हैं लाइफ में, बहुत पैसा कमाया उन्होंने. इवन आई कैन टेक एग्जांपल ऑफ वॉरेन बफेट, जिन्होंने बहुत कम एज से ही स्टार्टेड अर्निंग. एंड इफ यू आस्क हिम हाउ ही बिकम सो विलियनरी, तो वो एक ही चीज़ बोलते हैं, आई सेव्ड एंड इन्वेस्टेड. तो उन्होंने पैसा बचाया और पैसे को सही जगह इन्वेस्ट किया. सो यू कैन इन्वेस्ट इन शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, और there are many other ways. Okay, so investments,
20 to 30% of your income we should save and invest. That is for the future security. That will increase your prosperity. And rest money you can spend on your day-to-day expenses. Okay, so this is how master suggest on physical level. Okay, physical level में जैसे अगर आप किसी को खाना देते हैं, if you are feeding people, if you are feeding the hungry, so in return आपको कभी भी भूखे पेट नहीं रहना पड़ेगा. You'll never have no deficiency of food in your house. You'll always have plenty of food. So this is on physical. आप कपड़े दान करते हैं तो कपड़े का भी आपको सेम वैसा रिटर्न मिलेगा. सो इट इज ऑलवेज वट एवर जो बीज आप बोएंगे उसी का फसल आपको मिलने वाला है. दिस इज व्हाट इज द मीनिंग. इफ यू वांट मनी वी हैव टू गिव मनी. द पीपल, जैसे लोग आते हैं, कुछ लोगों का हेल्थ का प्रॉब्लम होता है, कार्मिक रीजन भी होते हैं. Due to karmic factor, the person is not getting well in spite of all the medical treatment, in spite of healings also sometimes. So हम उनको healing के साथ साथ हम उनको tithing भी suggest करते हैं. The tithing or donation will help them to generate good karma. एक medical study also is there. Dr. P. Jones बोल के, he's a doctor, he's a specialist in chemotherapy. ओके, कैंसर स्पेशलिस्ट है. उन्होंने एक रिसर्च सबमिट किया है, आप गूगल में भी सर्च करके निकाल सकते हैं. सो व्हाट ही डिड ऑल द ट्रीटमेंट्स. ही हिमसेल्फ वाज सफरिंग विथ कैंसर. तो उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया कैंसर के ऊपर. ही टूक हीलिंग ऑल्सो फ्रॉम वन ऑफ द सीनियर आचार्य मास्टर स्टीफन को की टीम से उन्होंने हीलिंग लिया एंड उनको बहुत आराम आया. ही वॉज जो हेला सेल बोलते थे, इन्फेक्टेड सेल और द कैंसर सेल वेर कॉल्ड हेला सेल. दोज वर एक्सपेरिमेंटेड इन द मशीन. 88% सेल्स वर क्योर्ड आफ्टर प्राणिक हीलिंग. बट फिर उनको बोला गया कि आप $100 लिख के डोनेट करिए. जैसे उन्होंने $100 लिख के कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में डोनेट किया, तो वो जो परसेंटेज ऑफ recovery of the HeLa cell has increased by another 7-8%. So जो 88% पे रुक गया था, that reached around 96-97%. So that was been proved in a laboratory also कि tithing या donation से कैसे immediate cell हमारे body के cell cure होते हैं. Okay, so this is a very interesting fact that we found. Many time हम patient को जब suggest करते हैं, when patient starts giving donation, तो उनका recovery बहुत fast होने लगता है. So if you are doing donation for your good health, you can find out people who are suffering with some disease, those who are unable to do treatment for themselves, आप उनको help करिए. Okay, so as a return you will get blessings or good karma for your good health. This is how things happens. So physical level generosity, this is the way we can practice. In emotional level में generosity हम कैसे practice कर सकते हैं? Being warm, nurturing and supporting. Warm. कुछ लोग आप देखें, आप जाके handshake भी करते हैं तो you will feel as if you have caught a dead fish. मरा हुआ मछली पकड़ लिया, हाथ में कोई जान नहीं है. ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे. So these people are dead emotionally, they are very dull. So जब हम लोगों से मिलते हैं, do we share our emotions very easily? Are we sharing our emotions warmly? So कुछ लोगों में ये natural tendency होता है emotion को share करने का लोगों को, और कुछ लोगों में थोड़ा सा वैसा tendency नहीं होता. तो there we need to properly observe ourselves and see, are we practicing emotional generosity? कई बार कुछ जगह पे हम ज़रूरत से ज़्यादा जनरस बन जाते हैं और कई बार कुछ जगह पे हम ज़रूरत से ज़्यादा कंजूस बन जाते हैं. सो दैट नीड टू बी ऑब्जर्व्ड. ओके, सो बेसिकली इफ़ यू वांट लव यू हैव टू गिव लव. जो हमको चाहिए हमको दूसरे को देना पड़ेगा. किसको लव नहीं चाहिए? सबको चाहिए होता है. बट व्हेन इट कम्स टू गिविंग, डू वी रियली कॉन्शियसली प्रैक्टिस? That we need to think. Okay, so mentally, how can we practice generosity mentally? Mentally, generosity is basically sharing knowledge, skill to the people who are ready and willing to learn.
So जैसे like we are doing these sessions without any cost, without any limitation, like it is open for all, anybody can come and watch and learn. So this is also kind of practicing mental generosity. Okay, so you can share your knowledge, you can guide people, you can help people, बट एक चीज याद रखिए, तब जब लोग विलिंगली लर्न करना चाह रहे हैं आपसे. डोंट पुश, ट्राई टू पुश व्हेन पीपल आर नॉट विलिंग टू लिसन. कई बार होता है कि हमको लगता है कि वी शुड टीच दिस थिंग टू सम पीपल, बट इफ द पर्सन इज नॉट विलिंग टू लिसन और लर्न, कैन वी टीच? वी कैन नॉट. इन दैट केस उसको फिर हम क्या बोलेंगे? इंटरफेरेंस बोलेंगे. ओके, दैट इज अगेन negative karma. So you'll notice that your understanding of a certain subject, अगर आप कोई चीज़ सिखाना शुरू करते हैं, पढ़ाना शुरू करते हैं, तो उस टॉपिक पे आपका नॉलेज और बढ़ता है. I think people who are into teaching line, they know it very well. Okay, so जो चीज़ हम दूसरे को शेयर करते हैं, दूसरों को बताते हैं, जो नॉलेज भी, तो हमारा नॉलेज और बढ़ता है. This is how things happens, because it is in giving that we receive. That is law of karma. ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. हर वर्च्यू में आप देखिए, एक है क्या हमको करना चाहिए, क्या दूसरा है हमको क्या नहीं करना चाहिए. वन इज जेनरोसिटी इज यंग एंड नॉन स्टीलिंग, और स्टीलिंग इज यिन, जो हमको नहीं करना चाहिए. सो व्हाट वी शुड एट द सेम, एक जगह पे हम जेनरोसिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, गुड कर्मा जनरेट कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम दूसरी जगह पे अगर हम स्टीलिंग करते हैं, तो वी आर क्रिएटिंग नेगेटिव कर्मा, और द नेगेटिव कर्मा ऑफ प्रॉस्पेरिटी, और इट विल क्रिएट अ माइंड डेबिट बैलेंस फॉर अस. सो एक तरफ हम पैसे डाल रहे हैं, दूसरे तरफ हम पैसे उठा रहे हैं, तो अकाउंट में ट्रांजैक्शन तो हो रहा है, बट देयर इज नो बैलेंस. वैसा कुछ हो जाएगा. सो वी नीड टू सेव गुड कर्मा ऑफ प्रॉस्पेरिटी फॉर अस, और जेनरोसिटी फॉर अस. उसके लिए स्टीलिंग कम करना पड़ेगा. ओके, हाउ कैन वी डू, व्हाट आर द वेज ऑफ स्टीलिंग? एक तो स्टीलिंग, नॉर्मली स्टीलिंग का मतलब क्या है? टेकिंग थिंग्स दैट डू नॉट बिलोंग्स टू अस. जो चीज़ हमारा नहीं है वो हम नहीं लें फिजिकली. सो फिजिकल लेवल का स्टीलिंग इज डिफरेंट वे पीपल आर डूइंग, बट देयर आर अदर लेवल्स ऑल्सो. रिलेशनशिप लेवल पे स्टीलिंग क्या होता है? Like if a person is committed with someone and the third person comes and shares the emotion, steals the emotion, that is also a kind of emotional stealing. Mental level पे क्या होता है? Intellectual properties, because उसमें भी लोगों का बहुत mental work जाता है, mental effort लगता है. तो if we steal if we buy pirated products, that is also stealing of intellectual properties. If we टैक्स का एक मैनिपुलेशन हमारे देश में बहुत कॉमन है. हम सबको लगता है कि ये तो करना सब लोग करते हैं. सो जस्ट बिकॉज सब लोग करते हैं ज़रूरी नहीं है कि इट इज़ राइट. So one must practice non-stealing not only in relations to physical properties but also in relations to the intellectual properties. So अगर किसी ने कोई डिज़ाइन बनाया है, कपड़े का ही डिज़ाइन है, और किसी ने उसको कॉपी कर लिया, चुरा लिया विदाउट परमिशन, एंड इफ़ वी बाय दैट प्रोडक्ट, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्टीलिंग. दैट इज, आई नो कि डे वन पे इतना सारा चीज़ें एक बार में करेक्ट करना हो सकता है डिफ़िकल्ट लगे. सो वी कैन गो स्टेप बाय स्टेप एंड वी कैन सी वेयर कैन वी करेक्ट आवरसेल्फ. यूजिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो काइंड ऑफ स्टीलिंग. ओके, सो दिस इज हाउ थिंग्स आर. इसके अलावा जो मंथली टाइदिंग है, टाइदिंग का आप यू कैन डिवाइड इन एक फॉर्मेट है जिसको मास्टर सजेस्ट करते हैं. दिस फॉर्मेट आई कैन नॉट शेयर यू इन दिस सेशन, बट इफ़ यू वांट दिस पर्सनली यू कैन कम्युनिकेट विथ मी, आई विल गिव इट टू यू. तो उसमें आपको अपना मंथली टाइदिंग को डिवाइड करना है, डिवाइड करके अलग अलग जगह पे देना है. ओके, सो
how can you do tithing is एक और तरीका जो which I also try to follow is every day after meditation और सुबह जब आप पूजा करते हैं जो भी आपका रिचुअल है करते हैं, after that you can take one amount, you can take any amount as per your budget, as per your strength of the pocket, 10 rupee, 20 rupee, 50 rupee, whatever is possible for you, and keep it in one place. 30 days के बाद आपका जितना पैसा हो जाता है that you can divide in that you can donate. कैसे डिवाइड करना है that I will not share you here since it is an open session, but that money you can donate. This is a way you can, like अगर एक साधारण इंसान 10 रुपये भी करता है तो महीने के 300 रुपये हो जाते हैं. That is if a person is earning not earning, if a person is just इनका कुछ खास इनकम नहीं है, still there is a pocket money 10 rupees तो कोई भी निकाल सकता है. If a person is earning 20,000 rupees, ideally the person should donate 2,000 rupees. But you can start with any amount to start with. जरूरी नहीं कि आपको 2,000 ही करना है. But ideally we should be doing 10%. We can start with any amount. You can increase up to 20% also. You have seen these people, Bill Gates and all these people. वो अपना प्रॉफिट का 80% चैरिटी में खर्चा कर रहे हैं. Now नो वंडर इतना उनका पायरेटेड सॉफ्टवेयर होने के बावजूद भी दिस पीपल इज वन ऑफ द वेल्दिएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, बिकॉज उनका प्रॉस्पेरिटी कर्मा इतना स्ट्रांग है. द काइंड ऑफ डोनेशन एंड चैरिटी ही डज दैट गिव्स हिम लॉट ऑफ गुड कर्मा. सो वर्क या एक्शन तो हमको करना ही करना है, बट एट द सेम टाइम वी नीड लॉट ऑफ गुड कर्मा ऑल्सो. अदरवाइज यू विल सी इवन इफ यू आर इनटू बिजनेस, I get such kind of issues every now and then. People who are into business, बहुत सारा bad debt हो गया, पैसा नहीं आ रहा है मार्केट से, stuck up हो गया. So in that case, I usually ask this question to the person कि दो तीन चीज़ें होती. एक होती है कि are you doing the same? Are you doing the same का मतलब होता है कि आप लोग आपके पैसे नहीं दे रहे तो क्या आपने किसी का पैसा रोक के रखा है क्या? If that is yes, then you have to start giving. Once you start releasing other people's money that you have holded up, आपका पैसा भी जहाँ अटका हुआ है, karmically you become entitled to receive. दूसरा होता है कि नहीं, मेरे पास तो ऐसा किसी का पैसा होल्ड अप नहीं है, but my money is stuck up. What should I do? Okay. In that case, we suggest them कि you start donating, you start tithing, because हो सकता है आपके पास prosperity कर्मा नहीं है, इसीलिए आपको नहीं मिल रहा है. सो दोनों चीज़ हमको टेक केयर करना होगा, जनरोसिटी ऑल्सो एज वेल एज नॉन स्टीलिंग ऑल्सो. So far any questions? If you have, you can ask. Otherwise I'll take you to one prayer. Okay, this prayer is given in the Golden Lotus Sutra by our teacher Grandmaster Choa Kok Sui. इस प्रेयर को आप रिपीट कर सकते हैं फॉर इफ यू वांट टू रिसीव मोर ब्लेसिंग्स ऑफ दिस वर्च्यू. सो हमको वो इनर स्ट्रेंथ चाहिए सो दैट वी कैन प्रैक्टिस दिस वर्च्यू ऑफ जेनरोसिटी एंड नॉन स्टीलिंग. क्या होता है, हमको ये चीज़ पता है थियोरिटिकली, वी नो मोर और लेस, किसी को थोड़ा ज़्यादा पता है, किसी को थोड़ा कम पता है. दैट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ लर्निंग, इज कॉल्ड नोइंग. नाउ द सेकेंड लेवल ऑफ लर्निंग इज रिमेंबरिंग. तो जब ऐसा सिचुएशन आता है लाइफ में कि सपोजिंगली सम पर्सन इज इन नीड, आपके सामने है, उसको परेशानी है और आपको पता है आप उसको हेल्प कर सकते हैं, आर यू विलिंग टू हेल्प? क्या आप वो निकाल के उसको हेल्प कर पाते हैं या आपके अंदर कोई इनोवेशन आता है? दैट वी हैव टू सी. दैट इज प्रैक्टिसिंग. वन इज नोइंग कि हमको करना चाहिए, अनदर इज रिमेंबरिंग कि सही समय पे मुझे वो याद आए कि मैं उसको इस चीज़ को करूं. कई बार याद आता भी है फिर भी हम नहीं करते. सपोजिंगली रास्ते में आपको एक बेगर मिला एंड यू नो हमको जेनरोसिटी प्रैक्टिस करना चाहिए, एंड यू बाय लुकिंग एट द बेगर यू रिमेंबर्ड ऑल्सो कि वी नीड टू प्रैक्टिस जेनरोसिटी. बट सडनली वन थॉट केम इनटू योर माइंड दैट इन लोगों को देखे क्या होगा, ये तो पैसा ले जाके वो डेंड्राइट खरीद के खाएगा. Okay, that can be true. I'm not saying that is false or true. Okay, but ये thought आया, जैसे ये thought आया आपने
स्टॉप किया, खुद को पैसे नहीं दिए। दिस इज व्हाट यू आर ऑन दस, आप नोइंग भी है, आपको पता भी है, आपको टीचिंग याद भी है, रिमेंबरिंग भी है, बट यू हैव नॉट प्रैक्टिस्ड। देयर यू हैव टू पुश योरसेल्फ एंड प्रैक्टिस इट, मेक इट इनटू एक्शन। ओके, जैसे जैसे हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, फिर द फोर्थ लेयर जो आएगा दैट इज कॉल्ड मास्टरी। फिर आपको नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ होगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, इट विल हैपन ऑटोमेटिकली। दैट इज नोइंग, रिमेंबरिंग, प्रैक्टिसिंग एंड मास्टरिंग। हम बहुत लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि ओके, अगर सच में हम ऐसा किसी को पैसा देते हैं, इफ द पर्सन गोज एंड बाइज ड्रग्स, शैल वी गिव इट और नॉट? सो इसमें द आइडिया इज बेसिकली शेयरिंग से सबसे ज्यादा फायदा किसको है? फर्स्ट बेनिफिशियरी इज द पर्सन हु गिव्स। ओके, बेनिफिट इज द ऑफ द फर्स्ट पर्सन हु गिव्स। सो नहीं देने का तो इसमें कोई चॉइस नहीं है। सेकेंड ऑप्शन, ओके, आप बोलेंगे इसको मैं पैसा दूंगा तो ये ड्रग्स खा सकता है, देन व्हाट इज अदर ऑप्शन? इवन इफ यू गिव फूड टू दैट पर्सन, सपोजिंगली आपने उसको खाना खिलाया और उसके पास स्ट्रेंथ आ गया, एंड इफ ही गोज एंड कमिट सम क्राइम, किसी का मर्डर कर देगा, डोंट यू थिंक दैट वाज आल्सो योर कंट्रीब्यूशन? उस मायने से तो देखिए आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वी थिंक दैट वे, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, विल जस्ट कीप ऑन थिंकिंग कि भाई किस क्या करें। नो डाउट हमको थोड़ा वाइजली यूज करना है, बिकॉज रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है। मेरे पास अगर 500 रुपये ही है डोनेशन देने के लिए, तो आई विल हैव टू सी कहाँ से देने से इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट आएगा, सबसे ज़्यादा लोगों को फायदा होगा, या सबसे ज़्यादा नीडी पर्सन के पास जाए। दैट इज अनदर पॉइंट, दैट इज ओके, प्रैक्टिकल बात है। लेकिन मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये इसका मिस यूटिलाइजेशन कर सकता है, दैट इज नॉट द राइट आइडिया। देना, नहीं देने का कोई रीजन नहीं होना चाहिए। ओके, जैसे कि हम बोलते हैं कि आपने अगर एक छोटे बच्चे को गन दिया, अगर वो जाके किसी को गोली मारेगा तो आपका गलती है, आपका मिस्टेक है। लेकिन अगर आपने एक एडल्ट को गन दिया और वो जाके किसी को गोली मारता है, तो इट इज द मिस्टेक ऑफ द, इट इज द फॉल्ट ऑफ द एडल्ट। सो नाउ इफ वी गिव मनी टू अ पर्सन एंड इफ यू मिसयूटिलाइज दैट मनी, दैट इज द कर्मा ऑफ दैट पर्सन, दैट इज नॉट माई कर्मा। ओके, ये क्लैरिटी आ गया थोड़ा? यस, कुछ कोई मैसेज है? ओके, आई पर्सनली डोंट गिव मनी बट बाय फूड और व्हाटएवर दे वांट. What matters is intention. If a person is hungry and want money for food, yes, if a person is hungry and person is looking for food, definitely we should give food. इसमें कोई दो राय नहीं है. It is always better to give money if you want money in your life. So generosity से सबसे पहला फायदा देने वाले का होता है. इसलिए हिंदू धर्म में देखिए बहुत इंटरेस्टिंग नियम है. आपने सुना है घर में जब आप पूजा कराते हैं, दो चीजें ब्राह्मण बोलता है, एक होता है दान, दूसरा होता है दक्षिणा. दान मीन्स डोनेशन, दक्षिणा इज द फी. सो दिस टू आर डिफरेंट. और अगर आप उसको दान देंगे, बोले आपका दान मैंने एक्सेप्ट किया, इसके लिए मुझे दक्षिणा चाहिए, बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट वॉज देयर कि द पर्सन हु गिव्स इज द फर्स्ट बेनिफिशियरी, द पर्सन हु रिसीव इज द सेकंड बेनिफिशियरी. क्योंकि आप जितना दे रहे हैं आपको उससे कई गुना ज्यादा मिलेगा. ठीक है. सो the soul develops by giving, not by accumulating. If you plant in order to harvest, when you have to plant in order. Okay, this is we have already covered. Let's go to the prayer. Before going to the prayer, if you have any questions. Do we always need to decree after donation? Yes, decreeing का भी एक concept है जो openly मैं आप लोगों को नहीं सिखा सकता, but to the pranic healers you can contact me. Will guide you, or we can do decree for you also. So डिक्री करने से मतलब क्या, जो भी आपने डोनेशन दिया, इसको सिंपल भाषा में आप संकल्प बोलते हैं. जैसे अगर आप कुछ कार्य करते हैं, इफ यू डू एनी वर्क,
you create an intention, why are we doing this? So if you are donating money and you, or if you are doing any service, especially decreeing service में आता है या money में भी आता है, जो donation में भी आता है, so you can decree that good karma for a specific task. Supposingly आपने किसी को पैसा दिया for a treatment of some poor patient. Now the good karma that you generated, you can decree that good karma for certain ailment of your body. So उसके लिए आपको एक इंटेंशन क्रिएट करना होता है, जिसको नॉर्मल में संकल्प बोलते हैं हिंदुइज्म में. उसका एक प्रेयर है, दैट प्रेयर कैन बी गाइडेड दैट पर्सनली. ठीक है. कई लोगों का ये सवाल आता है कि अगर हम मैंने बिना इच्छा के, जैसे गीता में भी कृष्ण सिखाते हैं कि फल की आशा किए बगैर कर्म करिए. ठीक है. इफ वी डू डोनेशन और सर्विस without expecting anything in return, then what is the point of decree? Because good karma और सर्विस हम दो तरीके से कर सकते हैं, या डोनेशन आप दो तरीके से कर सकते हैं. एक तो आपको कुछ चाहिए इसलिए आप कर रहे हैं. दूसरा, आप रियली में लोगों का हेल्प करना चाहते हैं. यू हैव लॉट ऑफ कंपैशन टुवर्ड्स पीपल, यू डोंट वांट एनीथिंग इन बैक. इन दैट केस ऑल्सो यू कैन डू सर्विस और टाइदिंग. So जो रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, जस्ट डूइंग बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स इन माई हैंड. मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है. आई हैव अ बिग हार्ट, आई जस्ट वांट टू शेयर, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग. दैट इज द बेस्ट वे. इसीलिए बहुत लोग गुप्त दान देते हैं. दे डोंट मेंशन देयर नेम्स आल्सो. बट मास्टर हमको एक जगह पे, हमारे टीचर ग्रैंड मास्टर चौकॉक से बोलते हैं कि यू कैन डिक्री ऑल्सो. सेल्फ इंटरेस्ट होना कोई गलत बात नहीं है, बिकॉज इसके पीछे रीजन ये है कि जो लोग ऑलरेडी एक अलग स्पिरिचुअल हायरार्की में हैं, वो ऑलरेडी योगी हैं, संत हो चुके हैं, उनको लाइफ में और कुछ अचीव नहीं करना है, उनके लिए रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट किए बगैर डोनेशन देना या सर्विस करना बेटर है. लेकिन जिनका अभी भी लाइफ स्ट्रगल में चल रहा है, सपोजिंगली मेरे को अभी भी लाइफ में स्ट्रगल अगर चल रहा है, आई वांट फ्यू थिंग्स टू कम बैक इन माय लाइफ इन दिस इनकारनेशन इटसेल्फ, उसको मैं डिक्री कर सकता हूँ. देयर इज नथिंग रॉन्ग. ठीक है. राम जी, आई हैव अ क्वेश्चन. यस प्लीज. राम जी, हम लोग डिक्री करके जो टाइदिंग करते हैं, उसका फल हमें अभी मिलेगा? लाइक वी डू इट दैट वे. करेंगे तो आपको इसी इनकारनेशन में मिलेगा. बेसिकली व्हाट एनर्जी फॉलोज थॉट, राइट? तो आप अपना एक थॉट क्रिएट कर रहे हैं, एक इंटेंशन बना रहे हैं कि ये जो मैंने गुड कर्मा किया, जनरेट किया, इसको मुझे अभी यूज करना है, मुझे नेक्स्ट लाइफ में नहीं चाहिए, अभी चाहिए. समथिंग लाइक दैट. एंड जो हम लोग बिना किसी फल की आशा के करते हैं, दैट वी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट इनकारनेशन. Ideally, yes. That is deposited in the total karmic bank account. So ideally, it carried forward in many incarnations, or it can come to this life also. तो उसका कोई स्पेसिफिक नहीं है. आपने उसमें कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं लगाया कि मुझे अभी चाहिए, तो वो कभी भी आएगा. एज पर लैक टाइम के हिसाब से वो आएगा. हर कर्मा का एक लैक टाइम होता है ना, तो वो लैक टाइम के हिसाब से आएगा, अगर आपने डिग्री नहीं भी किया तो. लेकिन अगर आपने डिग्री किया तो यू आर एक्चुअली एडिशनली क्रिएटिंग अ इंटेंशन सो दैट इट कम्स बैक फॉर स्पेसिफिक पर्पज. थैंक यू. ओके. सपोजिंगली आपने एक एफडी खोला. अच्छा, हर एफडी का मैच्योरिटी का एक टाइम होता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल. ठीक है. तो मैच्योरिटी का टाइम पे आपको अपने आप मैच्योर होके आएगा. दैट इज प्रिंसिपल ऑफ लैक टाइम. नाउ आपने एफडी खोला, 2 साल बाद आपको पैसा चाहिए, तो यू कैन फिल अप द फॉर्म एंड विथड्रॉ द मनी. तो डिक्रीइंग इज लाइक दैट, फिलिंग अप द फॉर्म. ओके, थैंक यू. ओके. सो ये एग्जांपल. एग्जांपल. ओके.
So let's in this I think अगर आपके पास ये book है तो you can go to the chapter page number 25. So आप मेडिटेशन के बाद या कोई भी chanting के बाद या सुबह पूजा के बाद you can repeat this prayer 7 times so that we get more blessings and we can really practice this virtue. This is Compassionate Objectivity, Golden Lotus Sutra by Grandmaster. Okay, so let's, you can follow me. Please अपने दोनों हाथ को हार्ट के पास लेके आइए. Slowly inhale and exhale. जो भी गॉड एंड गॉडेस को आप मानते हैं उनको याद करिए, इन्वोक करिए. And you can take the name of the god and goddess whom you follow. Now mentally follow with me. Lord God, thank you for blessing me with the virtue of generosity and non-stealing. Please bless me with compassionate, generous heart that I may give and share to those in need. Thank you also for blessing my life with abundance, wealth and riches. With deep gratitude and in full faith. Second time, Lord God, thank you for blessing me with the virtue of generosity and non-stealing. Please bless me with a compassionate, generous heart that I may give and share to those in need. Thank you also for blessing my life with abundance, wealth and riches. With deep gratitude and in full faith. Third time, Lord God, thank you for blessing me with the virtue of generosity and non-stealing. Please bless me with a compassionate, generous heart that I may give and share to those in need. Thank you also for blessing my life with abundance, wealth and riches. With deep gratitude and in full faith. Fourth time, Lord God, thank you for blessing me with the virtue of generosity and non-stealing. Please bless me with a compassionate, generous heart that I may give and share to those in need. Thank you also for blessing my life with abundance, wealth and riches. With deep gratitude and in full faith. For fifth time, Lord God, thank you for blessing me with the virtue of generosity and non-stealing. Please bless me with a compassionate, generous heart that I may give and share to those in need. Thank you also for blessing my life with abundance, wealth and riches. With deep gratitude and in full faith. Sixth time, Lord God, thank you for blessing me with the virtue of generosity and non-stealing. Please bless me with a compassionate, generous heart that I may give and share to those in need. Thank you also for blessing my life with abundance, wealth and riches, with deep gratitude and in full faith. Last time, Lord God, thank you for blessing me with the virtue of generosity and non-stealing. Please bless me with a compassionate, generous heart that I may give and share to those in need. Thank you also for blessing my life with abundance, wealth and riches, with deep gratitude and in full faith. You can continue this prayer for 3 months and also start donating. You will see many things will change in your life. In 3-4 महीने में आपको change दिखेगा. I'm saying this with my own experience and confidence because I practiced this and found the result. So you can give it a try. Okay, so thank you very much. If you have any more questions, then you can ask, or let us close for today. Well, so please put your hands on heart. Try to recall what we have learned so far. Feel gratitude towards the God and the teacher. Mentally say, Lord God, thank you. Divine Father, Divine Mother, thank you. To our beloved teacher, all the great ones, all the holy gurus, saints, archangels, holy angels, spiritual helpers. Thank you for your blessings, guidance, help and protection. Thank you for all these teachings. Thank you for giving us inner strength to follow these teachings. Thank you in full faith. Thank you. Thank you everyone for joining Atma Namaste.
Thank you, Ramji. Thank you, Via. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, Ramji. Oh, yeah. The nice session. Thank you. अच्छे से क्लास करना